Morning students. Today we are discussing about motivation. This is one of the element of your direction. In the previous class we discussed about direction as a function, directing as a function of management. Now directing has three elements majorly, and what we discussed is motivation, supervision, communication and leadership. So out of these four, the one of the important element that we discuss now today is motivation. To talk about the motivation, everybody is aware that what indicates the motivation and why motivation is required. See, I'll start with an example at your home or somewhere. You can take anywhere, a child, a family member, where it may be. If a person is doing a work, say an example, a parent, a father asks the child to go to a shop and get some ingredients or get some items from the shop. So if the child goes to the shop and gets the goods in a correct order and gives back to the parent, then the parent needs to motivate him by saying that well done, good, you've done a good job, or by giving him a chocolate. If you give him a chocolate to the child will get motivated and he will be waiting for the next order from you and always wanted to do. मतलब यहाँ पे एक होता है कि अगर किसी से हमें काम करवाना है तो उससे पहले मोटिवेट उसको, मतलब यू शुड मोटिवेट हिम so that he will work interestingly, he will do on his own, like he will get motivated, he will the willingness of creation, मतलब हम लोग उसको एक willingness create करते हैं. Basically the efficiency of a person depends on two factors. अगर किसी का एफिशिएंसी के बारे में बात करें, किसी द पर्सनस एफिशिएंसी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, it depends on the two factor. Firstly, the level of ability to do a certain work, and secondly the willingness to do the work. एक तो है ability to do certain work, this is the first factor. The second factor is the willingness to do the work. मतलब एक एम्प्लॉई या एक पर्सन का, इंडिविजुअल का अगर हम एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है एफिशिएंसी का. एक होता है लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू एंड द सेकंड वन इज विलिंगनेस टू डू. So far as the first factor is concerned, it can be acquired by educating and training and development. हम लोग उसको एजुकेट करके, ट्रेनिंग दे के या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हम फर्स्ट फैक्टर को अचीव कर सकते हैं, दैट इज़ द लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क. वो वर्क करने का एबिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग हिम एंड बाय ट्रेनिंग हिम. जैसे हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई है, ही इज़ वर्किंग ऑन ए टाइपराइटर. नाउ वी इंट्रोड्यूस्ड ए कंप्यूटर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. बाय गिविंग हिम ए ट्रेनिंग वी कैन make him able to operate the computer. Now computer he can operate. This by giving training we can do. But the second one, that is the factor, that is what we discussed as willingness to do. मतलब उसको करने का मन होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए. That we cannot force him to do. It has to be done by a factor called created by a motivation. It can be created by motivation. जैसे बच्चे के पास पढ़ने का टैलेंट बहुत है, इसके पास नॉलेज है. दो फैक्टर हैं. अपने पेरेंट अगर बच्चे का एफिशिएंसी टेस्ट करना चाहता है तो दो फैक्टर हैं. एक है उसके पास, अगर पढ़ाई के मामले में बात करें तो उसके पास पढ़ने के लिए एबिलिटी, मतलब वो ग्रैस्प कर लेता है. उसको ट्रेनिंग करो, एजुकेट करो, ट्यूशन दो, उसको कहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो तो ऑटोमेटिक ही विल गेट एजुकेटेड, ही विल गेट द ट्रेनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल. बट दैट्स उस सब्जेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे, कहीं वो प्रैक्टिस करना चाहे, वो खुद एग्ज़ाम लिखने के लिए अगर अच्छा पढ़ना चाहे तो ही शुड हैव ए विलिंगनेस टू रीड. उसे विलिंगनेस होना चाहिए. सो दैट विलिंगनेस कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग हिम. इट कैन बी डन बाय ए मोटिवेशन. सो हियर सिंपल, वेन एवर ए पर्सन डज सम वर्क देयर इज ऑलवेज ए नीड बिहाइंड इन विच मोटिवेट्स इन डूइंग सो. सो उसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेट करती है कि करने के लिए. सपोज से एन एग्जाम्पल, ए वर्कर, एन एम्प्लॉई इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वाई इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ अ मोटिव बिहाइंड इट. क्यों कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, बॉस जैसा कह रहा है वैसा काम कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके लिए खाने के लिए पैसे चाहिए,
घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो सैलरी इज हिज नीड एंड दैट नीड मोटिवेटेड हिम टू डू द जॉब। तो ये है हमारा मोटिवेशन, बेसिकली मोटिवेशन बोलते हैं हम। सो मोटिवेशन का मतलब इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। ये सिंपल प्रोसेस है, मतलब इट इज़ ए प्रोसेस विच एक्साइट्स द पीपल फॉर वर्किंग, मतलब वो काम करने के लिए उनको एक्साइट कर देता है कि ये काम करना है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। दैट कारण, वो कारण, द काज विच मोटिवेट्स हिम टू डू दैट वर्क। कुछ काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उसके पीछे कोई मोटिवेशन होगा, कुछ रीज़न होगा, दैट इज़ मोटिवेटेड यू टू प्रिपेयर। सो कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि ही वांटेड टू डू समथिंग इन फ्यूचर, दैट इज़ हिज मोटिवेशन बिहाइंड इट। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ के लिए हमें कंपलसरी मोटिवेट करना होता है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द मोटिवेशन नाउ। मोटिवेशन एक फर्स्ट ऑफ ऑल है साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। साइकोलॉजिकल फिनोमेनन मतलब मोटिवेशन इज़ इंटरनल फीलिंग है, वो जनरली इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। सो साइकोलॉजिकल फिनोमेना मीन्स इंटरनल फीलिंग होता है, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज़, हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली द इंटरनल फीलिंग जैसे होता है ना कि उसका नीड, मतलब वो कंपलसरी है उसके लिए कि खाने पीने के लिए, पैसों के लिए करेगा, या उसका डिज़ायर मतलब उसका एम्बिशन है वो करना है, एस्पिरेशन एट्सेट्रा, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर है विच आर लाइक मोटिवेट्स हिम टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। सो ये फर्स्ट फीचर है मोटिवेशन का, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, मतलब इनर से ऑटोमेटिक इनर फीलिंग है वो। एंड द सेकेंड वन इज़ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब ये पीपल को इंड्यूस करता है कि दे कैन अचीव देयर गोल्स, उनका टारगेट को अचीव करने के लिए ये ऑटोमेटिकली उनको इंड्यूस करता है। जैसे मान के चलिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट गोल अचीव करने के लिए यहाँ पे आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग परफेक्टली सीखना होगा 11 और 12 स्टैंडर्ड में। सो और 11 और 12 में जो कॉमर्स रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हैं, अच्छी तरह से आपको परफेक्टली पढ़ना होगा। सो नाउ यू आर मोटिवेटेड, मतलब यू गॉट एन interest of preparing well in these subjects because you want to achieve your target of CA, that is motivation। ये second characteristics है। motivation can be either positive or a negative। motivation positive भी हो सकता है या negative हो सकता है। suppose say an example, the employees who are laborious in the true sense of the word are encouraged with some words like अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा behavior है, तो उनको हम इंकरेज करते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो और आगे बढ़ो, और तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें इंडिकेटर मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिया जाएगा, आगे प्रमोशन के लिए आपको मूवमेंट किया जाएगा। ये सब है पॉजिटिव मोटिवेशन है। लेकिन कोई एम्प्लॉई अगर रेगुलरली मतलब रेगुलरली absent है या रेगुलरली मिसबिहेव करता है, बैड इंटेंशन है, तो उनके लिए हम पनिशमेंट देते हैं, जैसे डिमोशन हो, टर्मिनेशन हो, ट्रांसफ़र हो, तो उनके लिए हम जो ये पॉलिसी अडाप्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया नेगेटिव मोटिवेशन, मतलब उनको नेगेटिव फोर्स कर रहे हैं। सो दिस इज़ मतलब मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क अच्छा करता है, for him it will be positive motivation, we give him an advancement, we give him upper like to us like we promote him for the future, for the upgradation। लेकिन जो वर्क में सिक है और अच्छा काम नहीं करता है और बैड कैरेक्टर रखता है या बैड इंटेंशन रखता है, उसे हम डिमोशन करते हैं। और मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब ये है कि कौन किस चीज़ से मोटिवेट होता है पता नहीं। जैसे न एग्जाम्पल देखिए, आपके घर में अगर पेरेंट किसी पेरेंट अगर किसी बच्चे को गया के कुछ आर्टिकल लाने के लिए या पढ़ने के लिए बोले, खाली शाबाशी दे दिए तो वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है मेरे पेरेंट मुझे शाबाशी बोला है, मेरे पापा ने मुझे शाबाश बोला है। लेकिन दिस शाबाशी विल नॉट वर्क आउट इन रिलेटेड टू ऑल द चिल्ड्रन। कि एक दूसरा आपका भाई बोलेगा मुझे शाबाशी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा शाबाशी लेके। अगर उसको चॉकलेट दोगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स एक एक का इंटेंशन अलग होता है। वी डोंट नो दिस बेस्ड ऑन द ह्यूमन कैरेक्टर, वी कैन नॉट डिसाइड हु विल मोटिवेटेड विथ व्हाट फैक्टर। लाइक अपने एम्प्लॉय में, ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है, अगर उसको हम बोलें कि बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड देंगे
या नोटिस बोर्ड में अच्छा एम्प्लॉय बोल के लिखेंगे, लेकिन ही मे नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज हिज नीड इज़ मनी। अगर इसका नीड मनी है तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, वी नीड टू प्रोवाइड हिम सम फाइनेंशियल बेनिफिट। इसलिए यहाँ ये कह सकते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बिकॉज इंडिविजुअल डिफर इन देयर नीड्स एंड वांट्स। अपना अपना नीड्स एंड वांट्स में डिफर होते हैं, किसको किससे क्या चीज़ चाहिए, कौन किससे मोटिवेट होता है, नोबडी नोज अबाउट इट। और मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने एक बार शाबाशी दे दी या एक बार प्रमोशन दे दिया या एक बार फाइनेंशियल बेनिफिट दे दिया और चुपचाप बैठ गए तो एम्प्लॉय विल नॉट मोटिवेटेड, वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो टू गेट मोटिवेटेड यू हैव टू डू द कंटिन्यूअस प्रोसेस। दीज आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन में एक है साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, मीन्स इनर फीलिंग है, वो ऑटोमेटिक अपना नीड बेस पे डिपेंड होता है कि हमारा नीड क्या है, उस बेसिस पे डिपेंड होता है। सेकंड है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, मतलब हमारा जो मोटिवेशन है हमारा गोल पे डिपेंड होता है, हमारा गोल को अचीव करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं, सो दैट मोटिवेट्स। एंड थर्ड वन इज़ मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। एंड द फोर्थ वन इज़ मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस because it is very difficult to identify the person needs and wants, and it is very difficult for us to identify how we will get motivated, how we'll motivate him. Motivation should be a continuous process. So you can see here some of the importance of motivation I'm giving you. मोटिवेट करने से कोई नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाला पॉजिटिव भी बन सकता है। जैसे आप एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर कभी स्टूडेंट को अगर कोई बच्चा रेगुलर नहीं आता है या कोई बच्चा कभी पढ़ाई अच्छा नहीं करता या कोई बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं लगाता, तो अगर हम उसे बोलेंगे बेटा तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज है, यू हैव ए गुड रिसोर्सेस, यू कैन डू वंडर्स, यू हैव नॉलेज, रेगुलर आ जाओ, अच्छा बच्चे बन सकते हो, तुम्हारे लिए ये बेनिफिट हो सकता है। इफ़ यू आर टेलिंग हिम ऑल दीज वर्ड्स एंड इफ़ यू मोटिवेट हिम, दैट पर्सन में बिकम ए गुड स्टूडेंट इन योर फ्यूचर। सो अगर वो स्टूडेंट गुड स्टूडेंट बन सकता है तो दिस मोटिवेशन में हेल्प यू टू कन्वर्ट द नेगेटिव थिंग्स टू पॉजिटिव। मतलब कुछ नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले भी पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी जब हम एम्प्लॉयज़ की बारे में बात करें, कोई एम्प्लॉय अगर किसी रीज़न से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप अगर उसे मोटिवेट करके, इफ़ यू मोटिवेट हिम and if you motivate to work in a better way, then definitely whatever the negative attitude he has in his mind will remove and he will become a positive, he will work with a positive attitude. और दूसरा, मोटिवेट improves the performance of employees, क्योंकि आप जब मोटिवेट करते हैं he knows that his need and basic things will be satisfied and for that only he is doing it. So if that motivates, if that satisfies, definitely his performance will improve. हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो आप अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली अपना गोल्स अचीव कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन क्रिएट्स सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। मोटिवेशन हेल्प द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। मोटिवेशन की वजह से हम नया नया कुछ चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, एफिशिएंटली वर्क करने के लिए रेडी हैं और आपके पास कैपेसिटी है एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करने का बाय डूइंग सम मोटिवेशनल प्रोसेस। सो आप चेंज ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एंड वन मोर थिंग इज़, इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयज़ नीड्स एंड बेसिक थिंग्स, द एम्प्लॉयज़ विल नेवर क्विट योर ऑर्गेनाइजेशन। सो डेफिनेटली इट reduces योर एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। सो ये हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। Basically there is a person called like Abraham Maslow, and the advocate of a person, this theory, Maslow's need had theory. This Maslow's hierarchy theory is advocated by Abraham Maslow. uh, Actually this theory of motivation is presented, the need hierarchy theory, in 1943. uh, According to this particular person, Maslow, Abraham Maslow, his duration, his period of his life is 1908 to 1970. His period of life is 1908 to 1970.
and this Abraham Maslow has given five based, like five important concepts, five important points based on which he developed a chain or a sequence of needs. Like uh, according to him, a man has countless needs and they can be categorized on the basis of priority. मैन मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए तो बहुत सारे नीड्स हैं. आप एक एग्जांपल लेंगे, अगर किसी आदमी को पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नीड, ही स्टार्ट्स गिविंग यू अ लिस्ट, एंडलेस लिस्ट ही विल गिव यू कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई दैट, दिस दैट, बहुत रहेंगे. बट अब्राहम मास्लो एज made them in a sequence, and according to him, the like example, like the needs which more sharply felt should be satisfied first. वो सोचता है कि प्रायोरिटी बेस में उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये मास्लो कहता है. तो प्रायोरिटी बेस में जब सेटिस्फाई करते हैं तो मास्लो हैज़ गिवन five parts which are shown, which are explained, which are going to be explained here in this concept. We are going to explain this diagram. Maslow has given 5 points, like 5 parts which are shown in the following this diagram. You can see here the diagram is given to you. He shows in this diagram 5 points. In this diagram he takes the 5 parts which are shown in this diagram. Regarding, he talks about, the first one is about the psychological needs, and the second one is safety secure needs, and third one is belonging needs, and fourth one is esteem needs, and fifth one is self actualization. So according to Maslow, मतलब मास्लो कहता है, जनरली बेसिकली मास्लो सेज, अब्राहम मास्लो सेज, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल नीड्स. मतलब ह्यूमन बीइंग हमेशा अपना साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पहले मोटिवेट होता है. मतलब पहला अपना वर्क करेगा. किसी को देखिएगा, अगर एम्प्लॉयज़ को या ह्यूमन बीइंग को देखिए, अगर पूछेंगे कि आपको वर्क देना चाहता हूँ तो पहला प्रायोरिटी क्या होगा, तो फर्स्ट ही गोज विद हिज साइकोलॉजिकल नीड्स. फर्स्ट ही साइकोलॉजिकल नीड्स. साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है, मतलब ह्यूमन ऑलवेज ट्राइज फॉर फुलफिलिंग हिज साइकोलॉजिकल नीड्स, विच इंक्लूड्स फर्स्ट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप. दीज आर द बेसिक थिंग्स. फर्स्ट ही वांटेड टू सेटिस्फाई दिस. क्योंकि हमेशा देख लीजिए, पहले अपना पेट भरे, उसके बाद में हम दूसरे के बारे में सोचेंगे. पहले पेट भरने के बाद ही हम सेविंग के बारे में, किसी और के बारे में सोचने के लिए रखते हैं. तो पहला प्रायोरिटी होगा हमारा, द फर्स्ट नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप, विच आर कैटेगराइज्ड एज साइकोलॉजिकल नीड्स बाय मास्लो. एक बार आपका फूड शेल्टर रेगुलरली आने लगा, मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए, आपको सैलरी दिया जा रहा है 2000 3000 पर मंथ सैलरी, and if you are comfortable that your stomach is full, like with that you can fulfill your needs of shelter, clothing and all, ये fulfill हो रहा है, then you will search for an improvement in your job for the second need you want. मतलब अपना second need, that is safety and security. The safety and security needs में physical safety एक होती है और economic safety होती है. फिजिकल सेफ्टी रिफर्स टू एक्सीडेंट्स, अटैक्स, डिसीजेस. अगर कुछ आ गया हमारे लिए अनएक्सपेक्टेडली अगर होता है, देन दीज प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में सोचते हैं. सो दिस इज सेकंड नीड. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, विच बेसिकली अबाउट सेटिस्फाइंग द एक फिजिकल सेफ्टी, दैट इज़ एक्सीडेंट अगर होता है या अटैक्स, डिसीजेस होते हैं, तो उसे कैसे प्रोटेक्ट कर लेंगे हम. एंड दूसरा है इकोनॉमिक सेफ्टी, दैट मीन्स लाइवलीहुड एंड अरेंजमेंट फॉर ओल्ड एज.